آداب ناظرین تُہۍ چھِو وٕچھان گُلِستان نیوز شام 7 بجے تو کٲشُر خبرنامہٕ ہٮ۪تھ چھُس بہٕ گوہر کُچھے تُہنٛدِس خدمتس منٛز حٲضِر تہٕ تفصیلات زاننہٕ برٛونٛہہ خاص خبرن پٮ۪ٹھ اکھ نظر فوجی سربراہ سُنٛد کشمیر دورٕ موجوٗدٕ سکیورٹی صورت ہیژٕکھ سام ایل جی یس سۭتۍ تہِ سپُد مُلاقات مُختٔلِف معاملن پٮ۪ٹھ سپٕز کتھ باتھ راہل گاندھی سُنٛد وادی کشمیر دورٕ پہلگام حملس منٛز زخمی سٲلٲنین سۭتۍ کٔرٕکھ کتھ باتھ ایل جی تہٕ وزیر اعلیٰ سۭتۍ تہِ سپُد مُلاقات میرویس کشمیر مولوی عمر فاروق سٕنٛدِ طرفہٕ پہلگام حملٕچ مذمت حملہٕ انسٲنیت تہٕ کشمیریتس خلاف قرار امن خوشحٲلی باپتھ کوٚرُکھ خصوٗصی دعا بنڈپورس مز فورسز تو ملٹنٹن درمیان جڑپ گولین ہندس تبادلس مز اخ ملٹنٹ مار ز فوجی اہلکار چھوکہ در اسپتال ریفر تو پیش خبرن ہز تفصیل فوجی سربراہ اپندر دویدی سند طرفہ واضح جموں کشیر ہند دورہ کرنے یا دوران تمو آز سری نگرس اندر فوجی افسرن ست ملاقات کرت پہلگام حملہ پتہ صورتحال جائزہ ہیوت فوجی سربراہس یدوے جموں کشیر ہندس تازہ سکیورٹی صورتحالس حوالہ زانکاری دن آئی تتہ تمو فوجی افسرن ہدایت دسم سرحدی علاقن مز گژھِ تلاشی کاروٲیی تیز کرنے ین یُتھ حملہ آورن خلاف کاروٲیی کرنے ییہِ فوجی سربراہ اپندر دویدی سند طرف جموں کشیر ہند لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا ست ملاقات کرنے آمد یتھ دوران مختلف معاملن پٮ۪ٹھ تبادلہ خیال سپُد حزب اختلاف لیڈر راہل گاندھی سند طرف آواز وادی کشیر ہند دورہ کرنے یتھ دوران تمو آز سری نگرس اندر کانگریس پارٹی لیڈرن تو دویمین وفدن ست ملاقات کور راہل گاندھی آئی پارٹی لیڈرو طرف پہلگام حملہ پتہ صورتحالس حوالہ زان فراہم کرنے راہل گاندھی سند طرف آو آرمی اسپتالک تہ دورہ کرنے یتھ دوران تمو تتہ پہلگام حملس من زخمی سپدمتین سٲلٲنین ہز عیادت کر راہل گاندھی سند طرف آئی جموں کشیر ہند ایل جی منوج سنہا تو وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ ست ملاقات کرنے یتھ دوران مختلف معاملن پٮ۪ٹھ تبادلہ خیال سپُد راہل گاندھی سند طرف سری نگرس مز میڈیا نمائندن ست کتھ کران ون آمت پہلگام حملہ افسوسناک تو انسانیتس پٮ۪ٹھ اخ بوڑ حملہ تہند طرف آو مزید یقین دہانی دن تم سرکارس ست شانہ بشانہ کھڑا It's been a terrible tragedy. And I came here to get a sense of what is going on and to help. The entire people of Jammu and Kashmir have condemned this terrible action. And they have fully supported the nation at this time. I met one of the people who was injured. I of course couldn't meet other family members and other people because the injured people have gone back. My love and affection to everybody who has lost family members, and I want everybody to know that the whole nation is standing together as one. We had a meeting yesterday with the government, and the united opposition condemned this action and said that we are there to support whatever action the government wants to take. The idea behind what has happened is to divide society, is to make brother fight brother, and it is very important that every single Indian stands united, stands together, so that we can defeat what the terrorists were trying to do. It's sad to see that some people are
attacking my brothers and sisters from Kashmir in the rest of the country. And I think it's very important that all of us stand together, stand united, and fight this nasty action that has been taken and defeat terrorism once and for all. Thank you very much. I came here, I mentioned that I met one of the people who was injured. I also met Chief Minister and LG, and they briefed me about what had happened, and I assured both of them that myself and our party is going to support fully. Thank you very much. जम्मू कश्मीर हिंद वज़ीर आला सिंध तरफ आया श्रीनगरस मज ट्रेड टूरिज्म इंडस्ट्रीज कन जिम्मेदारन सत मीटिंग हिंद सदारत करने यथ दौरान पहलगाम हमले पत पद सपदमितन हालातन पे कत बात आई कर अत मौकस पे युदव पहलगाम हमले मजम्मत आई कर तत आई इन वलिस वक्तस मज कैंसन नयन इकदामन पे सलाह मशवर कर यल जन जम्मू कश्मीर नबर तालिब इल्मन तो बाकी लुकन हरासा करने किस मामलस पे कत बात सपज मीडिया सत कत कराना उमर अब्दुल्ला सद तरफ कैंसन नेशनल न्यूज चैनलन हिंज नुक्त चीनी करान वन तिम सिर्फ नफरत फैलावन तो मजहब किस नावस पे मुल्क तकसीम यछन कर At this point in time, we are not counting rupees and paisa. In fact, I think it is a credit to all the participants and the stakeholders in this meeting. Not one of them lamented the loss of business. Not one of them said, okay, what will happen to me? My rooms are empty. What will happen to me? My houseboat is empty. What will happen to me? My taxi is empty. They all said, business comes, business goes. At this point in time, that is not our concern. Our concern is to express solidarity and sympathy with the families of those 26 people who were killed in this attack. There may be a time in the future when we will sit down and discuss the financial implications of what is happening to the J&K economy, but not one of the participants used this meeting today to either talk about the business losses that they are suffering or ask for any sort of compensation from the government. And I think that is a credit to our business organizations. Government of India has taken some steps as far as Jammu and Kashmir is concerned. Let's be honest, we have never been in favor of the Indus Water Treaty. We have always believed that the Indus Water Treaty has been the most unfair document to the people of Jammu and Kashmir. Now what the medium to long-term implications of this are, that's something we will have to wait to see. इसके लिए मुझे लगता है हम सबको अपनी जगह कम से कम ये तसल्ली होनी चाहिए. खुशी तो मैं कह नहीं सकता हूँ क्योंकि इन हालात में खुशी का इजहार कोई नहीं कर सकता, ना किसी को खुशी महसूस हो रही है, लेकिन कम से कम तसल्ली तो हो. जो आज जामा मस्जिद में जुमा की नमाज से पहले 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई, ये उन तमाम चैनलों को जवाब है जो कश्मीरियों के खिलाफ जहर भरने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन बदकिस्मती से ये बेशर्म चैनल ये दिखाएंगे नहीं, क्योंकि ये चीज दिखा के उनकी चैनलें चलेंगी नहीं. ये चैनल नफरत फैला के चलती हैं. काश ये चैनल जो हैं इनकी हिम्मत होती. मैं माफी चाहता हूं ये कहते हुए, लेकिन कुछ इन चैनलों के एंकर बुज़दिल लोग हैं, वो सच का साथ नहीं देते. अगर वो सच का साथ देते तो वो दुनिया को बताते कि आज कश्मीर के ऐतिहासिक जामा मस्जिद में पहलगाम के 26 जो विक्टिम्स हैं उनके साथ हमदर्दी के लिए 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई. इससे ज्यादा हम क्या कह सकते हैं. मीरवैस मौलवी उमर फारूक सिंध तरफ आज जामिया मस्जिद श्रीनगरस मज खुतबस दौरान पहलगाम हमले मजम्मत करान वन आमुत बेगुना लुकन हुंद कत्ल आम यी न कुन त सूरतस मज बर्दाश्त करन. अत मौकस पे वोन ये 2 मिनटन हिंज खामोशी इख्तियार करन आय. तत मीरवैस सिंध तरफ
वन आमुत ज पूरे कोशर कौम पहलगाम हमले कन मुतासरीन सत शाना बशाना खड़ा तमो सरकारस अपील कर्म तिमन गि इजाजत यून दिन यूथ तिम जख्मियन हिज इयादत हेकन कर। और हम एक बार फिर ये बात कहना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की आवाम बिला लिहाज मजहब व मिल्लत जो है इस खूनीन वाक़ये के खिलाफ न सिर्फ सरापा एहतजाज हैं, बल्कि हम ये महसूस करते हैं कि ये अमल बिल्कुल नाकाबिले कबूल अमल है। मैं हुकूमत से भी ये भी कहना चाहता हूँ कि मुझे ये इजाज़त दी जाए कि मैं ज़ख्मियों की इयादत के लिए अस्पताल जाना चाहता हूँ और उनसे मुलाकात करना चाहता हूँ, ताकि ये जज्बात जो है हम उन तक पहुँचाएँ जम्मू कश्मीर के मुसलमानों के। और उसके साथ साथ मैं शहीद आदिल हुसैन के घर जाकर भी उसके अहल खाना से ताज़ियत करना चाहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे इजाज़त दी जाएगी, चूँकि अब हम नमाज जुमा इज्तिमाई तौर अदा कर रहे हैं। मुतासरा फैमिलीज़ के साथ, जो अफेक्टेड फैमिलीज़ हैं, उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए नमाज से कबल मैं तमाम मुसलमानों से अपील करूँगा कि हम 1 मिनट की मुकम्मल खामोशी इख्तियार करें और उन अफराद के साथ, उन फैमिलीज़ के साथ इज़हार यकजहती करें जिन्होंने अपने अजीज़ और अपने अक़रबा को इस खूनीन वाक़या में खो दिया है। 1 मिनट के लिए हम सब खामोशी इख्तियार करें। अल्लाहुम्मा सल्लिमना वसल्लिम दीनना वसल्लिम ईमानना वसब्बित इस्लामना वजल आखिर कलामना मिन दुनिया शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह। खर मकदम द्रुस मुल्कस अंदर युद्ध आज जुमा किस मौके पर मुख्तलिफ जायन पहलगाम हमलस खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे करने आये। तत सपुद जामिया मस्जिद दिल्ली निबर कन एहतजाजी जुलूस बरामद। यथ दौरान पहलगाम हमले कन मुतासरीन सत यकजहती हुंद इजहार आव करने। अत मौके पर ये पाकिस्तानस खिलाफ नारे तय बुलंद करने। तत मरकजी सरकारस पे जोर दिन आमुद ज हमला आवरन खिलाफ गि सख्त कार्रवाई अमल में जन यीन युत मुतासरीन इंसाफ फराहम सप्द। गर्दी का कोई धर्म नहीं होता। जिस तरीके का हमला उन दहशतगर्दों ने करा है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। हिंदुस्तान का एक भी इंसान उसको बर्दाश्त नहीं करेगा जो हमारे मुल्क के अमन को, शांति को, भाईचारे को बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। उसमें एक भाई मुसलमान भी हैं और 25 हमारे हिंदू भाई हैं। उनको वो इस दुनिया में नहीं रहे मगर एक एक नागरिक उनके साथ है। आप देख सकते हैं जिस पुरानी दिल्ली में आप आए हैं, पूरी पुरानी दिल्ली में आज कर्फ्यू जैसा माहौल है। ये माहौल है, एक एक दुकानदार अपनी दुकानों को बंद कर रखा है। एक एक इंसान आज यहाँ पर एहतजाज कर रहा है आतंकवाद के खिलाफ, एहतजाज कर रहा है उन दहशतगर्दों के खिलाफ जो इस मुल्क के न कभी थे न कभी हो सकते हैं, जिन्होंने इस मुल्क को हमेशा बर्बाद करा है, कश्मीरियों के कारोबारों को ख़त्म कर दिया। वो नौजवान हमारा भाई जिसकी महज 1 हफ्ते पहले शादी हुई वो चला गया। हिम्मत थी, दहशतगर्दों को आर्मी से लड़ना चाहिए था, मुकाबला उनसे करना चाहिए था, ना कि बेकसूरों को। मज़हब इस्लाम में, कुरान पाक में साफ तौर पर लिखा है कि किसी एक नाजायज़ को मारना पूरी इंसानियत को मारने के बराबर है। तो हम उसकी मुखालफत करते हैं और मजम्मत करते हैं। आज जामा मस्जिद से भी आवाज़ उठी,
जामा मस्जिद के चौक से भी आवाज़ उठी, हिंदुस्तान के एक एक कोने से आज आवाज़ उठ रही है दहशत गर्दों को किसी भी वजह से। अब ये सरकार की लड़ाई नहीं, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की लड़ाई है दहशत गर्दी के खिलाफ। कश्मीरी इस देश का एक अहम हिस्सा है। जितना कश्मीर है इतना हर इंसान की जितनी 27 स्टेट्स हैं सबको इतना अधिकार है, पूरे हिंदुस्तान में घूम सकते हैं। ये सरकार का फ़र्ज़ है, स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, कि कश्मीरियों को प्रोटेक्ट करें। वो कश्मीरी जिन्होंने बड़ी खूबसूरती से बड़ी मेहनत के साथ फिर से कश्मीर को ऊपर पहुंचाया, मेहनत करी, उन रोज़गार ला के कश्मीर में चांद लगाने का काम करा है। लड़ाई दहशत गर्दों से होनी चाहिए, ना कि एक मजहब। दिल्ली की जामा मस्जिद पर आज हजारों की तादाद में मुसलमान झंडे लेकर के इकट्ठा हो गए। हालांकि कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस ने जामा मस्जिद पर एक प्रदर्शन जरूर करने दिया, जहां पर आम आदमी पार्टी के विधायक आले मोहम्मद इकबाल मौजूद थे। इस वक्त अगर आप देखेंगे तो हम जामा मस्जिद की उन्हीं सीढ़ियों पर मौजूद है। हजारों की तादाद में पहुंचे यहाँ मुसलमानों ने विरोध प्रदर्शन किया, जहाँ पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। अगर आप देखेंगे तो अभी भी कई मुसलमान यहाँ पर मौजूद हैं। नमाज से पहले से लेकर और नमाज के कई घंटे बाद तक यहाँ पर लगातार भीड़ रही, और इस भीड़ के अंदर मुसलमानों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। साथ ही पहलगाम पर इंसानियत का हमला, इस तरह के नारे थे। ख़ास तौर पर आज जामा मस्जिद से शाही इमाम ने एक बड़ा मैसेज दिया। आज नमाज के दौरान शाही इमाम ने कहा कि पाकिस्तान की इस हरकत का खामियाजा हिंदुस्तान के मुसलमानों को भुगतना पड़ता है। पाकिस्तान तो करके चला जाता है, लेकिन हिंदुस्तान के निहत्थे और निर्दोष मुसलमानों को कुछ लोग निशाना बनाते हैं। वहीं उन्होंने हरियाणा, पंजाब जैसी घटनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आज हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं, जो पूरी तरह से गलत है। शाही इमाम ने कहा कि हाल ही में 2 मुस्लिम लोगों को सिर्फ इसलिए मार दिया गया कि वो मुसलमान थे। पहलगाम की इस घटना के बाद हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के ऊपर अत्याचार बढ़ गया है। इसके बाद से लगातार लोगों ने ये मैसेज देने की कोशिश की कि हम हिंदुस्तान के साथ हैं और हिंदुस्तान सरकार के हर शाना बशाने फैसले में साथ खड़े हुए हैं। लेकिन जिस तरह से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, वो भी धर्म देख करके वो पूरी तरह से इंसानियत के खिलाफ है। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। नमाज जुमा पता आव पुंछस मज शिया बरादरी तरफ पहलगाम हमलस खिलाफ एहतजाज करने के दौरान तमो हमलच मजम्मत करान अत मज मुलविस नफरन खिलाफ सख्त कार्रवाई हज मांग कर। तमो वोर मजीद तमो बयानों निश परहेज कर युथ नबर तलब इलमन या बाकी हंदन लुकन का नुकसान वात। के बाद यहाँ पर प्रोटेस्ट रखा गया, और वो शख्स जिन्होंने पहलगाम में अपने जान निछावर की है, अपने जानों की जो है वहाँ कुर्बानी दी है, उनका खराज अकीदत पेश किया गया। और उसके साथ साथ ही हुकूमत हिंदुस्तान से गुजारिश की है कि जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेज और एजेंसीज हैं उनको लगाया जाए और ये आइडेंटिफाई कराया जाए कि इसको अंजाम देने वाली कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी, कौन सी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी। और इसके साथ साथ हम ये भी अपील करना चाहते हैं कि इस वक्त जो रूमर दिखाए जाते हैं, हिंदू उसको फसाद करने की कोशिश की जा रही है, और जो लोग इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं आज हमारा ये एहतजाज नमाज जुमा के बाद यहाँ पर कश्मीर में 2 रोज़ कबल हुए उस हादसे के लिए कि जिसमें बेगुनाह हिंदुस्तानियों का कत्ल हुआ है, जहाँ पे कुछ हिंदू भाई हैं और कुछ मुसलमान भाई हैं। हम यहाँ पर इसलिए जमा हुए हैं, हिंदुस्तान की हुकूमत से ये कह रहे हैं कि जितना जल्दी हो कि मुजरिम को सामने लाया जाए और उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, वो कोई भी हो, इसलिए कि वो पहलगाम हमले पत द्रुस मुल्कस्तान जम्मू कश्मीर अंदर एहतजाजन हुंद सिलसिले जारी। तो आज आव लाल चौक श्रीनगरस मज दुकानदारों तरफ दुकान नबर कन ब्लैक झंड लगित यकजहती हुंद इजहार कर। अत मौकस पे आव दुकानदारों तरफ पहलगाम हमल मजम्मत करान वन यह बोड़ अफसोस सैलानियन पे आव हमल कर युस जन इंसानियतुक कत्ल छु। पहले मैं यहाँ का शॉपकीपर हूँ और वाइस प्रेसिडेंट ट्रेडर्स एसोसिएशन सेंटर लाल चौक का। हमारी मैसेज यही है कि वी कंडेम द अटैक जो हुआ था इनोसेंट लोगों पे पहलगाम में। ये हमारा ज़रिया है कि हम वी प्रोटेस्ट, ये मातम है हमारे लिए। हम बेहद शर्मिंदा है जिन्होंने भी ये किया, ये नहीं होना चाहिए था। ये हमारे मेहमान थे, हम कश्मीरी जाने जाते हॉस्पिटैलिटी के लिए, ये हमारा कल्चर हमें ये सिखाता नहीं है। तो हमारी यही मैसेज है कि पूरी हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया को दिखाने की कि हम ये रिग्रेट करते जो हुआ और हम शर्मिंदा इसके लिए।
हमारी यही मैसेज है कि हम कश्मीरी ऐसे नहीं है, हमारी मैसेज ये है कि आप यहाँ पे सेफ और सिक्योर है। हम जो भी हुआ वो पास्ट है, वो हो चुका है, और एडमिनिस्ट्रेशन से भी हमारी दरख्वास्त है कि जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत है, टूरिस्ट जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ पे सिक्योरिटी का बंदोबस्त इससे भी ज़्यादा पुख्ता होना चाहिए था। तो टूरिस्ट के लिए हमारी मैसेज है, आप आइए, हॉस्पिटैलिटी ये जन्नत है, ये जन्नत ही है, जन्नत रहेगा, इससे आगे भी आप यहाँ पे सेफ़ है, हमारे घर खुले हैं आपके लिए, आपको जब भी आना होगा आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे घरों में रह सकते हैं। हम लाल चौक में कहीं भी आ सकते हैं, सारी दुकानें हैं लाल चौक में। हमने सबसे यही रिक्वेस्ट किया है कि अपने घर खोल दो टूरिस्टों के लिए, फ्री सर्विस है टूरिस्टों के लिए। यही रिक्वेस्ट है कि कश्मीर माना जाता है हॉस्पिटैलिटी के लिए, है भी और रहेगा भी। देखिए सब ये जो साइना हुआ है, ये जिसके हम बराबर गम के हम बराबर शरीक हैं, ये हम इनके साथ साथ है, ये हमारे भाई साहब में भाईचारा है, अपना है, हम भी इस दुख के साथ हैं। हम वेलकम करते जब ये आते हैं, हमें खुशी होती है। बाकी तो ये भी जो भी हुआ ये बहुत दुख की बात है, बहुत। अगर दुख नहीं होता तो हम नाज़रीन इस वक्त को खबरनामांद थो दियो इजाज़त, खुदा सवाल।